Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q1 FY25 post-earnings conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call, from the management, we have with us Mr. Rupesh Mehta, CMD, and his management team comprising of Mr. Rajnikant Raja, CFO, and Mr. Kishore Kakani, Company Secretary. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainty. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the business performance highlights for the quarter that went by, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Yeah, good afternoon, everyone. First of all, I honestly welcome you all to Q1 25 post-result conference call. Thank you very much for believing in your company as an investor. I wanted to assure you that we are fully committed to maximize the value of our shareholders, and we promise to deliver the best of us. With your support and backing, we are confident to achieve even greater height than these days to come. We will have a brief about the overall performance of the company for the quarter ended 30 June 2024, followed by an interactive session. The financial result and presentation have been posted on our company's website, and hope you have had an opportunity to go through the same. Let me explain the overall performance of the company. This quarter 25 has been marked by the Mac Power's remarkable performance in compared to Q1 24. In terms of all the aspects, the revenue, EBITDA, PAT, EPS, order book, etc. I am delighted to announce that our company has achieved the growth whatever we committed. I would like to quick run you through some results highlight first, then we'll discuss more about the business. So Q1 FY25 revenue 50.22 crore. It's YOY 24% growth compared to Q1 last year, which is the highest revenue in Mac Power's history in Q1. So Q1 EBITDA margin was 6.57, which is increased by 95% compared to YOY last year. Q1 FY25 PAT margin is increased 4.02 compared to last year YOY, 98% growth in the PAT. Highest ever pending order book in Mac Power history, which is increased by 283 crore. The number of machines quantity is 15142 on 30th June 2024. Dispatch machines value in Q1 is approximately 50 crore, and against we received the 70 crores new orders. So almost 20-25% every quarter new order we are adding in our baskets. Now production capacity is already increased by 2,000 machines compared to last year 1,500 machines. Existing 200 kilowatt installation of solar plant we have and already now we ordered 600 kilowatt solar plant. So almost our electric energy bill is 80 to 90% of our energy bill will generate by the solars. And last Q1 we invested 2 crore for the capex, as we are increasing our capex to get the more production, productivity and backward integration. And this 1st August, we already started our new R&D center facility at the Bangalore. And the result we are expecting from this R&D center is 5-axis machining center, EMS, PCB and semiconductor. So in this January,
we have one exhibitions in Bangalore, which is the largest exhibition of Asia. It's called IMTEX, where we are going to display the 5-axis machines and EMS machines. And these machines will produce through our Bangalore R&D center. As we had mentioned in our presentation that we are discussing with for the joint venture with some of the foreign company for the technical assistance and the future expansion plan. And as we promised that we keep the MacPower, your company, a debt-free company, and the one good news from this new budget for this segment is the Mudra loan. The value of Mudra loan was only 10 lakh rupees, which is increased by 20 lakh rupees. And the time duration is very fast for this small loan. And second thing is SIDBI increased their distribution by almost 100% new areas they are adding. So our customer will get the finance very quick and with the very low cost margin. And as we promised that we sustain the growth of 20-25%, and we are promising this journey in coming quarters also. EBITDA margin increased by maybe right now EBITDA margin, the highest achievement of EBITDA margin is 17. There is a gap of another 10% with the backward integration and production and productivity. So in future, we can increase the EBITDA margin. Thank you very much, Vinay. So if you have any questions, then we can start the question and answer. Sure, sir. Anybody who wishes to ask a question, you use the option of raise hand. If you don't have the option available, you can just drop a message on chat and we'll invite you to ask the question. So just to begin with, we have the first question coming from Mr. Ajay Surya. Ajay, you can go ahead, please. Hello. Ajay, we are not able to hear you. Yeah, you can go ahead now. Yeah. Hello. Yeah, Ajay. Yes, Ajay. Yeah. Yes, sir. Sir, my question is, sir, अगर जैसे अपन इस क्वार्टर अपना एवरेज रियलाइजेशन देखें नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से, तो वो सर जो अपन ऑन एन एवरेज पिछले क्वार्टर में जो करीबन 19 लाख 19.5 लाख आ रहा था, वो इस क्वार्टर में गिर के सर 15.5 लाख हो गया है। तो सर क्या इसके पीछे का रीजन बता पाएंगे कि ये ड्रास्टिक फॉल क्या है, क्यों आया है, और गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके क्या रह सकता है ये नंबर? Ajay ji, first of all, it's 18.76, which is not 15. And the reason of this 1 lakh rupees जो reduce हुआ है, उसका जो reason है कि हमारा entry level का billings ज्यादा हुआ है और जो higher end products है उसकी billing है वो पेमेंट की वजह से नेक्स्ट मंथ में एक्सटेंडेड हुई है. सो एवरेज प्राइस है वो ज्यादा गैप नहीं है. जो 20 लाख आ रहा था वो ऑलमोस्ट नियर बाय 19 लाख. नहीं सर, जैसे अपन ने इस क्वार्टर 324 मशीन बेची है और अपना रेवेन्यू 50 करोड़. 262 डिस्पैच इज 262. आप बुकिंग देख रहे हैं? नहीं सर, अपन ने प्रेजेंटेशन में लिखा है कि नंबर ऑफ मशीन सोल्ड में 62 हाई वैल्यू है और 262 जो अदर्स है ऐसा, और 324 अपन ने टोटल बेचा है. तो So it may be some mistake, Ajay ji, but totally I will check the presentation. जरा विनय जी देख लो. Total हुआ है अजय जी 262 and average price is 18.76. अच्छा, ओके सर. और गोइंग फॉरवर्ड जैसे अपना ये नया कैपेसिटी आ गया है, तो इससे अपन अब जो हाई वैल्यू मशीनरीज अब फास्टर रेट पे निकाल पाएंगे, और उससे अपना जो ये एवरेज रियलाइजेशन है वो कहाँ तक जा सकता है? वो एवरेज रियलाइजेशन जो है अभी 20 था लास्ट क्वार्टर में, तो एंड ईयर के बाद कुछ काफी बड़ी मशीन्स जो है डबल कॉलम है और VTL है, उसका रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्पैच स्टार्ट होगा.
तो मेरे ख्याल से हम लोग वो 24 to 25, क्योंकि डिफेंस के भी काफी हाई वैल्यूड ऑर्डर है, तो 25 लाख तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ईयर एंड के अंदर एवरेज रियलाइजेशन बढ़ेगा। अच्छा, तो सर दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे इस क्वार्टर देखे तो अपने ग्रॉस मार्जिन है वो काफी इम्प्रूव हो गए हैं, कि जो पिछले साल अपन 30% जैसे ग्रॉस मार्जिन कर रहे थे, और जैसे लास्ट क्वार्टर कुछ वो 35% था, इस क्वार्टर वो बढ़ के 37-38% हो गया है। वो तो सर 2% का रीजन एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये हम्म, थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगा। जैसे मैंने आपने काफी कॉन्फ्रेंस में सुना है कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करता था जिससे कि मार्जिन इंप्रूव होगा, तो काफी कंपोनेंट की रियलाइजेशन ऑफ इफेक्ट आने लगी है। कुछ टेलीस्कोपिक कवर है, कुछ सिलेंडर्स है, तो 30% की जगह पे 60% तक हम लोग इन हाउस कर रहे हैं। तो उससे एक जो बिल ऑफ मटेरियल है उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। और सेकंड थिंग है कि डिफेंस की जो 2 करोड़ की मशीन्स गई है वो काफी हाई वैल्यूड थी और हाई मार्जिन्स की मशीन्स थी, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट की डिस्पैच के कारण और लेकिन मार्जिन का जो अजय जी है वो मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट आता ही रहेगा। अभी तक जैसे जैसे आगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो 10% तक का गैप है कि हम लोग मार्जिन इंप्रूव करते जाएंगे। अच्छा सर। और सर फाइनल क्वेश्चन सर, जैसे मतलब क्योंकि सीएनसी मशीनरीज थोड़ा कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, तो ये क्वार्टर जनरली इलेक्शन के कारण अपने को ये डिस्पैच थोड़ा कम, या अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये क्वार्टर, मतलब खाली इस पे थोड़ा सा गाइडेंस। हाँ जी अजय जी, टोटली मेरा टोटल कैरियर का और मशीन टूल्स की सारी पीयर्स कंपनी का अगर निकालेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन मेरे हिसाब से इलेक्शन और अप्रैल का जो बिलिंग है उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली ट्रेंड ये रहेगा कि 15 to 20% आपका फर्स्ट क्वार्टर टोटल बिजनेस का, ये ट्रेंड है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का, क्योंकि अप्रैल में किसी की भी बैलेंस शीट तैयार नहीं है, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देगी, तो पूरा अप्रैल है ऑलमोस्ट खाली रहता है। तो फर्स्ट क्वार्टर का टोटल बिजनेस का जो एवरेज आउट मैं करता हूँ सारी कंपनियों का और मेरी खुद की मैकमोर का, तो 15 से 20% आपका टोटल बिजनेस का अ, आपको रियलाइजेशन मिलेगा। सेकंड क्वार्टर में 25%, थर्ड क्वार्टर में 25% और फोर्थ में 30 to 35, ये एवरेज ट्रेंड रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, नेचुरल है। फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे ही ट्रेंड रहता है कैपिटल गुड्स का। ओके सर, सर यही क्वेश्चन है। और सर खाली वो एक बार आप क्लैरिफाई करना Ajay, ना, जो नंबर Ajay, ऑफ just to, मशीन अपन yeah, ने yeah. सेल। Hello, Ajay, can you hear me? या Yeah. Just to clarify on your query, the total या machines sold is 262, which includes 62 high value machines. Okay. ओके ओके Okay. So that's not separate. If you take this against the execution, it will come to 18.8 lakh rupees per machine average. ओके, दैट क्लैरिफाइज। Yeah. या, Sure. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू अजय। Thank you. So we'll take one question from the chat from Mr. Manoj Rawat. Any update on the new land and JV partner? And 2 crore capex is towards what? Can you elaborate on backward integration? 2 crores for the sum of the machines we ordered, it's delivered in a Q1, and the crane for the construction we purchased, the average fixtures and tooling. So this 2 crore is for the capex for the production productivity and some of the backward integration. For JV, we are discussing with the three Japanese and German players for the technical know-how, and for the land of new expansion is already they show the land, and already they send the report to the ministry.
now I think we are waiting for ministry's clearance. Maybe I'm expecting that before January we'll get this land. Sure. We take the next question from Mr. Samarth Nagpal. Samarth, you can go ahead, please. Yeah, sir. Good afternoon, sir. Sir, Yeah, good afternoon, sir. first of all, sir, congratulations, sir, for a great set of results. मतलब मैक पावर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो भी आप गाइडेंस देते हो, आई थिंक बहुत ही वेल थॉट थ्रू होती है. सर, मेरे एक दो क्वेश्चंस थे, नॉट ऑन द नंबर्स और समथिंग. लास्ट कॉल में आपने एक बताया था कि आप एक डीलर मॉडल पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे हमारे बेस मॉडल्स होंगे, ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो जल्दी फुलफिल हो जाए. कुछ बेस मॉडल्स हम डीलर्स के पास रखेंगे. तो सर, वो मॉडल हमारा कैसा काम कर रहा है, कैसा अपटेक आ रहा है वहां पे हमारे पास, क्या हमारा एग्जीक्यूशन फास्टर हो रहा है जो हमारे बेस मॉडल्स है जिसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है? सर, एक उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस. इसमें जो 4 या 5 डीलर थे अभी हमारे पास, उसमें से 2 डीलर के पास काफी अच्छी इन्वेंट्री के साथ हम लोगों ने विजिट करो और मशीन डिलीवर्ड करो, डिलीवरी इन डे, जहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज कैटलॉग प्रोडक्ट है. 70% मार्केट जो है वो कैटलॉग प्रोडक्ट का होता है. जो मशीन वहां पे हम रेडी में रख रहे हैं जैसे कार की शोरूम की तरह, और वो मॉडल काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा है. और हम अपने खुद के भी जो बैंगलोर के R&D सेंटर है वहां पे भी एक स्टॉक्स बड़ा इन्फ्लेट करेंगे नेक्स्ट मंथ से. एक कोयम्बतूर में भी करेंगे जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली नया जगह लिया है, और चेन्नई में हमने एक जगह लिया है. अब सारे जगह पे हम लोग ये स्टॉक एंड सेल का एंट्री लेवल पे, क्योंकि एंट्री लेवल पे लोग ये वेट नहीं करेंगे, मशीन देखो, ट्रायल लो और लेके चले जाओ. तो एक नया ट्रेंड है और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है. जी सर, जी सर. सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है, एंड जैसे आपने पहले भी गाइडेंस दिया कि हमारा 20 to 25% ऑर्डर बुक में एडिशन ही होता है पर क्वार्टर. तो सर, जो मेरी अभी करंट ऑर्डर बुक है, क्या ये मानना सही रहेगा कि मे बी इन द नेक्स्ट 6 to 9 months ये ऑर्डर बुक हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सर्विस कर पाए इन सारे ऑर्डर्स को? बिकॉज अभी डिफेंस के भी और ऑर्डर्स आएंगे, काफी सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो आर वी ऑन ट्रैक फॉर दैट? हाँ, जो ऑर्डर बुक्स आ रहा है उसमें पहला तो है कि ये ऑर्डर वन टाइम का नहीं है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रोज 10 ऑर्डर आता है तो 4 मशीन 5 मशीन पर डे डिस्पैच होता है. तो ऑर्डर बुक है वो पर डे के हिसाब से डिस्पैच वर्सेस न्यू ऑर्डर रिसीव्ड. लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं चाहूंगा कि 20-25% हमारे पास ऑर्डर बुक बढ़े कंपेयर टू डिस्पैचेस. दूसरा, हम लोग सारी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशंस के लिए कभी फ्लोर पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि कस्टमर ने एक टोकन एडवांस दिया है 4 लाख 5 लाख 1 लाख. अब 25% तक उसकी एडवांस नहीं आएगी तब तक उसकी हम लोग शॉप फ्लोर पे नहीं लेंगे. जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल गुड्स है और उसमें लोग 95% लोग सब्सिडीज मिलती है इसलिए लोन लेंगे, क्योंकि लोन लेंगे तभी उसको सब्सिडी मिलेगी. फिर जो इंटरेस्ट है वो भी उनको 7 से 8% रिएम्बर्स हो रहा है. और तीसरा है कि उनको टैक्स भी रिएम्बर्स हो रहा है GST के थ्रू. तो ऐसे काफी लोग हैं जो बुकिंग करा देते हैं, डिलीवरी उसका 3 मंथ्स के बाद चाहिए, 4 महीने के बाद चाहिए. तो हम लोग ये ऑर्डर बुक को मेंटेन करेंगे. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर्स को, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर बुक हमें चाहिए उतनी, तो प्रॉपरली हम प्लान कर पाए. और शॉप फ्लोर जो है उसके ऊपर जितनी भी मशीन पड़ी है उसमें एक रूल्स है हमारा कि आपकी जितनी भी शॉप फ्लोर में मशीन प्लानिंग में ली है आपने, वो 95% आपकी डिस्पैच हो जानी चाहिए. वहां पे 5% से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन के लिए थोड़ी स्पेस का इश्यू आएगा. अब तो 500 मशीन्स की एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है, तो ये ऑर्डर बुक है वो सस्टेनेबल रहेगी और कंप्लीट कभी नहीं होगी. जितना हम डिस्पैच करेंगे उससे 25% नया ऑर्डर लेने का ट्राई करेंगे. जैसे कि मैं अभी बताऊं तो
2 days back we appointed 35 new people in sales. तो वो अभी फील्ड में जाएंगे और Q2 में Q3 में और नए ऑर्डर्स लेके आएंगे। तो अभी हमारे पास सेल्स एंड सर्विस की फोर्स है, वो हिस्ट्री की हाईएस्ट सेल्स एंड सर्विस की टीम हो गई है, जिसके थ्रू हम और भी ज्यादा मे बी Q3 के अंदर अभी जो ऑर्डर बुक दिखा रही है उससे भी हम लोग और 20% ज्यादा नई ऑर्डर बुक ऐड करेंगे। जी सर। सर मेरा एक सवाल लास्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड था, जो आपने सेल्स टीम की बात की है। सर हमारे यहाँ पे काफी स्पेशलाइज्ड सेल्स टीम होगी, उसकी ट्रेनिंग में भी बहुत टाइम लगता होगा कि कैसे ऑर्डर पिच करना है, कैसे वो करना है। एंड आई नो कि कंपटीशन भी होता है मार्केट में जो सोर्स करेगा, तो ये थोड़ा सा कल्चर रिलेटेड था कि ऐसा क्या है मैक पावर में कि जो हम सेल्स टीम हायर करते हैं वो हमारे साथ काम करना चाहती है और वो हमारे से रिटेन होती है, कि एट्रिशन हाई नहीं होता, बिकॉज ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है आई एम श्योर, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की। सो ऐसा हमारे कल्चर में क्या अलग है कि हम सेल्स टीम को रिटेन कर पाते हैं और नए लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं 30-35 लोग, और वो हमसे कंटिन्यू करेंगे? बस एक सवाल। एक तो ट्रेनिंग के अंदर हम लोग एक बॉन्ड लेते हैं, इफ इज लेस देन 5 years एक्सपीरियंस तो उनका 2 years का एक बॉन्ड है, एक वो रहता है। दूसरा रहता है कि मैक पावर इज द ओनली कंपनी इन इंडिया who are the paying the variables, जैसे कि सैलरी के उपरांत उनको पर मशीन्स के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, हर एक ऑर्डर के ऊपर और बिलिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर उनको एक इंसेंटिव प्लान मिलता है, जिसकी रियलाइजेशन उनको क्वार्टरली होती है। दूसरा अट्रैक्शन उनको ये रहता है कि अवार्ड सेरेमनी में टॉप 1, 2, 3 हाईएस्ट 100% और 100% से प्लस जो ब्रांचेस ने परफॉर्म किया उनके लिए एक सेपरेट बोनस है, जो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी में नहीं है। तीसरा ये है कि ज्यादातर ये लोगों को हम क्वार्टरली मिलते हैं, कोई एक सेंटर पे या राजकोट में हर एक RM के साथ में, और उनकी जो मंथली मीटिंग है उसके अंदर हमारे पास सारी ब्रांचेस के अंदर सेल्स एंड सर्विस के लिए एक सेपरेट HR टीम है, जो उनकी CRM की रिपोर्ट से, डेली विजिट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, उनकी KPI है, परफॉर्मेंस है और ट्रेनिंग है। तो उनको जो लोकल लेवल पे सपोर्ट मिलता है ब्रांच के थ्रू, क्योंकि HO से बहुत दूर है, 30 सिटीज में ब्रांच है, कलकत्ता, जमशेदपुर, चेन्नई, बैंगलोर, कोयम्बतूर, तो उनको एक HR के थ्रू हम लोग रेगुलर सपोर्ट देते हैं कि उनकी गैप एनालिसिस लंबी नहीं हो जाए। तो ये एक रीजन है कि लोग हमारे साथ सेल्स में कुछ सीनियर्स है, वो मोर देन 20 years से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आई होप कि हमारे अगले क्वार्टर्स भी ऐसे ही रहे, एंड क्वार्टर्स नहीं, अगले कुछ साल भी ऐसे ही रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। ऐसे नहीं, इससे बहुत अच्छे रहे, ऐसा बोले सर बिल्कुल सर, एंड आई थिंक कॉन कॉल अटेंड करके आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। ऑल द बेस्ट टू मैक पावर, एंड इट्स ग्रेट बीइंग एसोसिएटेड विद द कंपनी। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Samar. So we'll take one question from the chat from Mr. Abhijit. Yeah. What are your export plans? Export right now we are not focusing, but in Q3 we'll start the new export wing. Right now there is an opportunity in Russia. There is an open market for the Russian buyers, but it will affect the joint venture. So we'll not focus this Q2 for the export, but yes, Q3, Q4 will focus in the export, but total India's export is not that much. According to my knowledge, is not more than 2 to 3%, definitely, which is increased year on year. And last 2 years, India's export is increased just because of Russia, because nobody is giving the machine to Russia except China and India. So, but if our Japanese JV partners is entering, then they would not prefer that if any of the company is exporting to the Russia. So we'll not focus this financial year unless and until we have a huge
plant capacity and production capacity that will focus on Q3, Q4, and the realization of this export business we will expect from the 2025 financial year, 26. Sir, his second question is, how do you see the demand scenario going forward, and how long do you expect this to continue? The demand is increasing by 20% according to the figure of the Fanuc Siemens and Mitsubishi, who are the largest supplier of all the OEMs with the CNC systems and Indian Machine Tools Association data. The demand is increased by 20% with the two different way. One is India developed the few machines which import substitute machines, and the government, education, and our Indian manufacturing segment. Because as I always told that without machines, manufacturing industries cannot be sustained. And the government is giving a lots of encourage to the small scale and medium scale entrepreneur to increase the manufacturing facilities, to providing the soft loan, interest-free loan, and subsidies. So I think in this budget also, they are focusing on these industries, manufacturing particularly, to provide the employment. So I thought that end of the year, India will be achieve 15 to 25% growth, and compared to same growth, I think we are expecting in your company also. We'll take the next question from Aniket. Aniket, you can unmute and ask your question. Thank you, sir. So my first question is that a lot of activity seems to be happening in defense and especially in aerospace in India. So how is this flowing down to you in terms of order, and are the margins better in this sector? Because right now, aerospace industries we supply to the HAL, and they don't require the many different types of the machines, 2 axis, 3 axis, 4 axis, and 5 axis. So most of the aerospace company is under the government. So the tender floated by the HAL and other relevant company. We are expecting that in that segment we can increase our market share by 8 to 10%. Okay, got it. But some of the technology like a 5-axis machines they required. We already supplied the 5-axis, but fully 5-axis dedicated to the propeller shaft and aircraft. We are launching on coming January exhibition. Okay, yeah, got it. So my another question is that last year we went to the margin of almost 17%. So where do you see margin this year and with the higher order book and capacity? So margin will increase with the two aspects, as I told you last time, that if our top line, because we have a fixed leverage, fixed cost, so margin will increase if our top line will increase and the backward integration. So I'm expecting this year will definitely reach to 19 to 20%. According to that, still we have another 5 to 7% room to increase the margin. Okay, sir, got it, sir. That's it from my side. Thank you so much and all the best. Thank you. We'll take the next question on chat from Varun Mahajan. What is Mac Power's vision for next 5 years, and what are the milestones planned to be achieved each year over 5 years? Also, can this vision be impacted should there be a change in the political scenario in the government? I think coming 5 years, we are expecting that will increase the capacity by 20 to 25%. Same growth we are expecting, 20-25% year on year. But as I announced that we are discussing for the new plant and new expansion where we are going to keep the big capacity, and almost all the backward integration facility we are adding. So average out 5 years growth, I am expecting in a conservative way by 20 to 25% year on year. And the government scenario,
will not that much effect to these industries because it's the backbone of manufacturing segments. Even we have approximately 200 countries in the world, but the manufacturing of this kind of machine is not more than double digit. Italy, Germany, Taiwan, Japan, India, some of the machines in US, Korea, and the consumptions by all of the countries, like railway, they required the machines, mobile, they required the machines, automobiles, power sector, plastics, dye and molds. So everywhere machines is the basic essential things. So I am not think that this political scenario will affect these industries. Yeah. So the next question on the chat is from Mr. Keshav Tantri. How hard it is generally to find talent and bring them up to speed in this industry? I'm asking this question keeping the new R&D facility and bringing it up to full productivity in mind. Full productivity in Bangalore. मतलब वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि अभी हमें फुल प्रोडक्शन लेवल पे अगर पहुंचना है और नया R&D करना है तो हमें कितना इजीली टैलेंट मिलता है और उनको ट्रेन करके तैयार करने में कितना टाइम लगता No, I think जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे पास काफी फैसिलिटीज है और ऑलमोस्ट आपने देखा हो कि हमने 95% तक रियलाइजेशन किया है प्लांट कैपेसिटी का। लेकिन टैलेंट के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन मशीन्स चाहिए हमें, जिसमें आ रहा है मेटल एडिंग टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, उसके बाद है आपका पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग। तो ये सब सेक्टर्स के लिए आपको एक अच्छा स्किल्ड लेजेंडरी R&D का पर्सन चाहिए जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस या जेवी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बैंगलोर, जहाँ पे काफी ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर बहुत ही इजी अवेलेबल है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट बैंगलोर का ऐसा है, तो वहाँ पे हम लोग R&D करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। लेकिन स्किल मैन पावर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप करना है, इसके लिए हमारे पास एक SOP है, उसके लिए हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पे हम प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और स्किल इंप्रूवमेंट के लिए काफी प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो उसके लिए हमें रैंप अप करना है स्किल्ड को एम्प्लॉय की related to production, so which we required only 3 months. Perfect. We'll take the next question from Jatin Jadhav. Jatin, you can go ahead, please. हेलो नमस्कार रुपेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अपन जो जेवी प्लान कर रहे हैं जर्मन और जापानीज प्लेयर्स के साथ, उसका एजेंडा क्या है सर? इज इट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वी आर गेटिंग इनटू हायर एंड मच मोर एडवांस मशीनिंग, और आपका उसका विजन क्या है वो जेवी का? एक विजन तो जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, अगर वो स्ट्रगल करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से बहुत कम प्लेयर के पास इंडिया में है और वो उनके पास होती है जिनके लिए वो फेमस होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो नेक्स्ट जो जनरेशन मशीन्स डेवलप होगी वो यही टेक्नोलॉजी पे आएगी और ग्रोथ भी वहां से आएगा। सेकंड, हम जो जेवी करेंगे उसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, जो हमें नया एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो वो जेवी के अंदर हम लोग दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा उनका फंडिंग भी काम आ सकता है, और तीसरा जो है उनके पास वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेडी होता है, जो इंडिया ने अब तक बहुत ही एस्टेब्लिश वे में कभी भी एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। ये भी जो हुआ है डीलर के थ्रू हुआ है या सिंगल डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू हुआ है। लेकिन इनके पास जो एक कंसोर्टियम बना है काफी 3-4 कंपनियों का साथ में मिलके, तो उनके पास एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेडी है, जहाँ पे उनके साथ रहने से इंडिया का जो कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा क्वालिटी का मशीन है
वो डिस्ट्रीब्यूशंस भी मिल सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, और उनकी ब्रांड के साथ वर्ल्ड वाइड प्लेयर बनने में जो रैंप अप होगा, स्पीड अप होगा, वो इजी रहेगा। थैंक यू सर। और सर सेकंड क्वेश्चन था कि सर अपार्ट फ्रॉम 5 एक्सेस अपना लेटेस्ट मशीन होगा, देन इवेंचुअली अपन हायर एंड 6 7 8 मतलब ये भी टाइप के मशीन्स होते हैं, करेक्ट सर? हाँ नहीं, 5 एक्सिस हो गया तो फिर वहां पे साइमल्टेनियसली 5 एक्सिस हो गया, फिर देर इज नो इश्यू टू 6 एक्सिस 7 एक्सिस, अप टू 5 एक्सिस दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। उसके बाद फिर कोई ज्यादा एक मोटर ऐड करनी है और कुछ नहीं। ओके सर, ठीक है, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू। We'll take the next question from Kush. Kush, you can go ahead, please. Good evening, Rupesh ji. Congratulations once again on a good consistent quarter, good growth year on year. थैंक यू। सर, पिछली बार हमने बात करी थी तो आपने कुछ गाइडेंस दिया था 300 से 350 करोड़ वी कैन टारगेट दिस ईयर. सर, एनी अपडेट ऑन दैट, ऑन दोज नंबर्स दैट यू वुड लाइक टू कमेंट? आप कह रहे हैं 20-25% ग्रोथ, सो बॉलपार्क कैन वी एक्सपेक्ट 300 करोड़ दिस ईयर सर, टॉप लाइन? वो एग्जैक्ट तो आपको भी बताया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैंने वही बताया कि हम लोग जो प्रोमिस किया है उसको फुलफिल करेंगे, और यही ब्रैकेट पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और उस हिसाब से प्लांट कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है। सेल्स फोर्स ऑलमोस्ट हमारा 30-35% बढ़ा है, जिसकी रियलाइजेशन Q3 में दिखेगी। ऑर्डर बुक अच्छा है, प्लांट कैपेसिटी का जो लिमिटेशन था वो भी दूर हो चुका है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही ग्रोथ रेट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और वो रिजल्ट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे आप लास्ट क्वार्टर से दिस क्वार्टर आपने ग्रोथ देखा, अब हर एक क्वार्टर में वो आपको चीज फील होगी। So what you are saying is, sir, year on year we can expect 20% growth on a quarter basis. दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, लेकिन जब हमने कुछ बड़ा एक्सपांशन कर लिया तो आप समझते हैं कि काफी बड़ा रैंप अप हो जाएगा प्रोडक्शन। अच्छा, okay. Understood, sir. Or margin, sir, again, we are guiding decent improvement in the margin, 19 to 20%. So, sir, is that something that you can really achieve this year, sir? हाँ, कुछ कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बहुत अपने हर एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, मैंने बोला था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से और हायर वैल्यूड की प्रोडक्ट पे या डिफेंस की एग्जीक्यूशंस पे मार्जिन बढ़ेगा, तो उसकी रियलाइजेशन आई है। Okay, sir. So, congratulations, sir. वही दो questions थे मेरे. All the best, sir. ओके कुछ भाई, थैंक यू। Thank you, Kush. We'll take the next question on the chat from Mr. Anand Chaudhary. What's the update on the capacity addition and when are we targeting to add another 2000 machine capacity? Right now, we already executed 2,500 machines, include करके, we are now 2,000 machines we can build up. Another 2,000 we are planning with the new land and new expansion. But in this premises, Q4 25, 26, we can add another 500 machines with the capex, help of capex of 10 to 15 crore. The next question is from Mr. Jay Mehta. What are your plans regarding capacity addition in order to fulfill this order book? And would you be expecting profit margin to increase through greater manufacturing? I think, as I told you, this we cannot supply all the orders, 1,500 orders in this year, but whatever the execution will complete, say for example, last 230, 260 we supplied, and new order will receive. So order book we expect that will increase, because we need the strong distribution network in India. We need all the product basket which our peers company have, and yeah, so this execution, I think 100% will not be completed. It is adding day by day, month by month, and quarter by quarter. Yes, we have some of the products which is the premium product in Mac Power,
where compared to our competitor, we are getting the good premium also. So we can increase the margin by backward integration, we can increase the margin by our top line. And order book, yes, we need the more orders. The next question is from Mr. Karthik. 340 crore bids that we have given in defense, what is the strike rate for the same that we have seen in the defense sector? I think there is no time limit for the opening of bidding, but normally it takes 6 to 9 months for bid opening. And after that, I think average out last 5 years experience for tender bidding, we won the 15 to 20%, in between 15 to 20%. So, next question is from Mr. Anand Chaudhary. What is the risk you see in our business in the near term? What could go wrong? What is the, can you repeat? Risk. What is the risk that you see in the business in the near term? Risk I am not feeling because we always play the risk free. Even in Corona, there is no risk in your company. We earn the money to manufacture the N95 mask and PPE kit, and we don't have a debt also. So it will not that much risk factor I am feeling. And second thing is 80% cost of your company is variable. So if there is something is happen in the country, then we can reduce our cost because our fixed cost is just 20%. So I'm not think that there is a much of threats in this industry. Yes, threat is the technology. Threat is the demand is increased by every year by 25%. So we have to fulfill this demand because as in my last conference, I told you that we are 7 people who contributing India's 80 to 85% business. So the threat is we have to give the production, productivity, quality, delivery, and new technology. And and that's why we started R&D center. That's why we are increasing our R&D cost. That's why we are increasing our distribution network. So I don't think that much threats in MacPower because we, with God grace, we never filed for the GST, income tax, any dues of suppliers, salaries, even in Corona also. So 80% cost we kept as a variables. I don't feel that much threats in this, in your company. Next question is from Mr. Chirag Khadgiwala. What is your USP against the competition and how will you be able to protect and grow your market share? Any threat of international competition or imports? We have some models like as I will explain you like automobiles. There is a 1000 cc car. So we have a same car like a 1000 cc, same models, but our features is different. So we explain the customer that our machine is 45 degrees slant bed. We are using the roller guard, which is the premium, like a power steering or you are using the very good brakes or like that. So what is my benefit? Benefit is you increase your tool life. You can have a very good productivity. And third thing is the service. We have a nearby service to you and our price is lesser than our competitor by 5 to 10%. We are adding you more features and our service is good. And we are selling the machine by segment to segment because in India, each and every city have their own segments. Jamnagar is for the brass part, Rajkot is for the bearings, races and automobile component, and Coimbatore is for the wall body. So we show our past experience, we show them our performance certificate by the customer, we demonstrate the machine in customer place. So this is our USP that whatever we are saying, we can prove it.
So they are getting the lesser price, they are getting higher warranty, they are getting good service, and with the higher features where we can get the good tool life, consumables cost is reduced with the Mac Power machines. So these all kind of the benefits we explain, we prove it, and then this customer will give us a minimum 10 orders in their entire life. So this is our strategy. We'll take the next question from Deepak Pandey. Deepak, you can go ahead, please. Thank you, Rupesh ji, for the opportunity. Yeah, thank you, Deepak ji. Congrats on a good set. Sir, I have a few questions on JV. अभी सर इसमें फंडरेज का भी कोई प्लान है क्या अगर जेवी आगे जाता है तो? अभी प्राइमरी डिस्कशन तो ये नहीं है, बट इंडिया के साथ जो इन लोगों का पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है उसमें शायद वो लोग इससे पहले बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी देने के बाद थोड़ी उनकी ट्रस्ट लेवल है वो कम हो जाएगी। तो एंट्री के बगैर टेक्नोलॉजी एंटर करेंगे कि नहीं वो देखना है, लेकिन प्राइमरी थॉट्स फंडिंग नहीं है। अंडरस्टूड सर। सर रियलाइजेशन पे अगर हम बात करें FY25 एंड FY26 में पर मशीन का क्या देख रहे हैं हम? मैं 25 लाख तक टारगेट करके चल रहा हूँ कि हमारा रियलाइजेशन एवरेज आउट 25 लाख आएगा, जिसमें काफी बड़ी डबल कॉलम HMC रहेंगी, और जो 5 एक्सिस और EMS मशीन हम जनवरी में लॉन्च कर रहे हैं थ्रू एग्जीबिशन, बैंगलोर एग्जीबिशन, उसकी रियलाइजेशन हमें 26 में कुछ हद तक मिलेंगी। तो एवरेज आउट प्राइस जो है वो 25 लाख का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। Sir, this is for the next year, right? FY26? At 26. Got it, sir. And sir, आपने remarks में बोला कि हम लोग we can also go up to 25-27% margins. Is that correct? Yes. उसकी जगह टोटल आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो कि जैसे कि CNC कंट्रोल है तो वो आप 100% कभी नहीं कर पाओगे, वो आपको बाहर से ही लेना है। वो वर्ल्ड में फानुक, सीमेंस, मित्सुबिशी ही है। बॉल स्क्रू एंड LM इंडिया में कोई नहीं बनाता है, वर्ल्ड में नहीं बनाता है। तो ऐसी काफी चीजें होती है, से फॉर एग्जांपल बेरिंग्स लगते हैं, बेल्ट्स लगते हैं, शीट मेटल लगता है। तो मैक्सिमम मेरे जो स्टडीज की है सबका और मेरा नॉलेज है, वहां पे 45% से लेके इंडिया में कुछ प्लेयर्स का 55% तक का मटेरियल लगता है। तो अभी भी मैक पावर के लिए जो सेगमेंट में हम है वहां पे 10% मार्जिन इंप्रूवमेंट का मिनिमम चांस। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। एंड सर ये अभी 25-30% अगर मार्जिन्स वी सी गोइंग अहेड, तो कितना टाइम सर लग सकता है? 3-4 साल, ऐसा कुछ आइडिया है? नहीं, ये मेरे ख्याल से नया प्लांट में जाने के बाद ही ये बाकी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, से फॉर एग्जांपल फाउंड्रीज, और उसके बाद का जो है वो नया प्लांट में ही लगेगा, और उससे मुझे लगता है कि मिनिमम 2 साल तो लगेगा ये मार्जिन लेवल पे पहुंचने में। लेकिन मैंने जैसे Q3 Q4 में बोला था, कुछ कंपोनेंट के थ्रू हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके 10 करोड़ के आसपास का कैपेक्स डाल के, तो वो रियलाइजेशन हो चुका है। तो 1 और 2% का जो इम्प्रूवमेंट है वो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखेगा, जैसे कि टॉप लाइन भी बढ़ेगी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा। तो लेकिन जो रैंप अप करना है, एकदम से जंप करना है, वो नई प्लांट फैसिलिटी में एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड सर। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज EMS सेगमेंट से अभी कितना रेवेन्यू इस साल आ सकता है सर? इस साल और अगले साल? इंडिया में बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेकिन एक होप्स है कि ये सेगमेंट से काफी बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। इसीलिए मुझे जो नॉलेज है इसमें, ये जनवरी एग्जीबिशन में सारे प्लेयरों की मशीन स्टॉल पे आप EMS देखेंगे। तो अभी तक है नहीं उतना बड़ा कोई एग्जीक्यूशन, पर जिस हिसाब से EMS के ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, और जो EMS के अंदर गवर्नमेंट भी जो एक विजन दिखा रही है, उससे लगता है कि नेक्स्ट ईयर EMS में काफी बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखने को मिले।
Understood, sir. Thank you for the time, sir. Best of luck. Thank you. We have two more questions in the chat. One is from Jihan Bada. Have you started selling to the EMS sector? How much can it contribute as a percentage of total revenue in 2 to 3 years? I think India's EMS market compared to our total consumption versus our total production, approximately 16 to 18,000 crore is our consumption for metal cutting. We are producing Jan is 8,000 crore, and this upcoming new market for India, EMS, will give the contribution of not more than 10% of their total consumption. So मुझे लगता है 1500 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़ की एवरेज पे ग्रो करेगा पर ईयर. And एक question है Mr. Prateep Maliwal का. Can you please repeat the capacity expansion plan for this year and next year, and the total capex, including the plan we will incur going ahead? This year, we already recently completed our capex and capacity. It's already now 2,000 machines. So we'll add another 500 machines in next financial year, maybe January, February 25. So there is no plan yet right now. In between, we'll add some more capex for the backward integration. Some of the major component which we are importing or we are buying from the suppliers. So we have a 2,000 machines capacity. Recently, 2 months back only, we added 500 machines. So next 500 will plan in 2025, and another capex will add for the improvement of the margin supply chain for the backward integration. So we'll take the last question for the day from Mr. Ajay Surya. Ajay, you can go ahead, please. हेलो. अजय भाई. हाँ सर, जैसे हम अगर अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो सर मेजॉरिटी ऑफ जो अपनी मशीन है वो टर्निंग सेंटर है. और टर्निंग सेंटर में सर जैसे काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी जैसे लक्ष्मी मशीन है और अदर प्लेयर्स है जो डोमिनेट करते हैं उस मार्केट को. तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर वहाँ पे अपना मार्केट शेयर कैसे इवॉल्व हो रहा है. और क्योंकि सर मार्केट इज फास्ट ग्रोथ से बढ़ने वाला है, तो सर कंपटीशन इंटेंसिटी कैसी है कि क्या वहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है या डोमेस्टिक प्लेयर्स ही उस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. आप थोड़ा इंडस्ट्री पे बता पाए टर्निंग सेंटर को लेकर तो हेल्पफुल होगा. देखो, एक तो पहला क्वेश्चन था इंपोर्ट की बात किसी ने की थी, वो थोड़ा स्किप हुआ है. तो इंपोर्ट के अंदर एंट्री लेवल का जो मशीन्स है बहुत ही एंट्री लेवल है. 6.5 लाख 8 लाख वो मशीन्स इंडिया में कुछ आया था लेकिन उतना सक्सेसफुल चला नहीं है. और जो क्योंकि ये काफी स्किल्ड रिक्वायर्ड है तो ज्यादातर जो इसमें फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और ताइवान एंड जापान, उनकी प्राइस अगर देखेंगे तो कंपेयर टू इंडिया ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है. और परफॉर्मेंस और सर्विस का जो चार्जेस है, स्पेयर्स का चार्जेस है, बहुत ही ज्यादा है. ब्रेकडाउन के टाइम पे मशीनें बहुत महीनों तक बंद रही है. हम लोगों ने भी काफी इंपोर्ट किया था मशीन्स IPO के टाइम पे, तो काफी फेसिस किया है ये प्रॉब्लम. तो इंडियन मशीन्स रिलायबल है, सस्ता भी है, स्पेयर्स भी इजीली अवेलेबल है, तो इंपोर्ट का थ्रेट उतना नहीं रहेगा. आपने जो बताया लक्ष्मी मशीन्स का और टर्निंग मशीन्स का मार्केट, तो टर्निंग मशीन्स है वो बेसिक्स टोटल मशीन टूल्स का जो कंजप्शन है उसमें आप सिंपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को समझो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स ही ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू कार. तो 2 व्हीलर्स जो है वो हमारी CNC टर्निंग मशीन्स है और VMCA वो कार है. बाकी का जो है HMCA, VTL, डबल कॉलम है, वो ट्रक और बस और इस तरह से मार्केट का साइज रहेगा कंजप्शन का. तो
ये एंट्री लेवल टर्निंग मशीन है, ऑलवेज नंबर वाइज ज्यादा रहेगी। मैक पावर का आप वैल्यू वाइज देखेंगे तो टर्निंग, वीएमसी, वीटीएल, एचएमसी सारी प्रोडक्ट्स का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, नहीं कि खाली टर्निंग मशीन्स का। और अगर आप दूसरी कंपनी की जो बात करते हैं उनकी वाई देखेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है। तो ये सब जो चीज है वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे और यही एनवायरनमेंट पे रियलाइजेशन आएगी। अगर उनकी थ्रेट्स हमें कहीं पे भी दिखती नहीं है और वो हमें ज्यादा थ्रेट्स लगता भी नहीं है कि होगा। हमें जो थ्रेट्स है टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे, जो नई दुनिया खड़ी हो रही है, हम टर्निंग मशीन, वीएमसी, एचएमसी, वीटीएल, ऑटोमेशन, रोबोटिक एंड गैंट्री और डिफेंस एंड उसके ऊपर ही खाली डिपेंडेंट रहेंगे तो अगले 5 साल का जो आप विजन देखते हो वो फुलफिल करने में हमारा यही एवरेज आउट रहेगा 20-25%। लेकिन एक लेवल पे हमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है तो हमें एक जेवी करनी है, हमें एक नई जो दुनिया आ रही है, ईएमएस, वाई एक्सिस, एरोनॉटिक, पीसीबी, मेटल एडिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एंटर करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई हमें थ्रेट दे पाएगा, क्योंकि अगर आप जो भी पीयर्स कंपनी की बात करते हैं उसके अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर मैक पावर का जस्ट 17%। देन ऑल्सो वी आर सेलिंग 5 to 10% lesser price with the higher warranty and higher features। तो ये जो प्रोडक्ट मैक पावर के पास है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई मैक पावर को थ्रेट दे पाएगा, क्योंकि वी आर वेरी फेमस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज और डेट फ्री। ये सब जो वेपन्स है वो हमारा फेवर करता ही रहेगा अगले 5 साल तक। लेकिन जो हमें एक रैंप अप करना है, ये जो मैंने बताया वो एक्सपोर्ट पे, तो वो जेवी के थ्रू बड़ा एक्सपांशन जो करना है नई टेक्नोलॉजी में, तो ये जर्नी अगले 5 साल के लिए जो चैलेंज आने वाला है वो मुझे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का और जो नई डिमांड क्रिएट हो रही है, नई दुनिया क्रिएट हो रही है और ये सारी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम है, तो उसके Got it. लिए हम लोग मेहनत ज्यादा करें जी। और सर फाइनल क्वेश्चन सर, मतलब इंटरनली हमारा क्या टारगेट है या क्या टाइमलाइन हम सोच कर चल रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द जेवी, और अगर वो इन केस नहीं होता है तो भी क्या जो हम लोग का जो प्लान है कि हम 2000 मशीन से जो 4000 मशीन का केपेक्स टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इंटैक्ट रहेगा या वो डिपेंडेंट है कि क्या हमारा जेवी होगा जेवी उसके? के साथ कोई कनेक्शन नहीं है अगले एक्सपेंशन का। ओके, तो जो ये हमारे ये ये जो नया प्लांट की हम बात जो कर रहे हैं, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम जेवी ऐड कर रहे हैं, वो अलग सेपरेट चीज है। हम एक्सपांशन कर रहे हैं वो फाइनल है, इसमें हमें गवर्नमेंट की काफी हेल्प की रिक्वायर्ड है, वो भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। और सेकंड में हम जेवी के थ्रू डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमने 1 अगस्त से अपना पहला R&D सेंटर जो बैंगलोर के अंदर स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हम लोग ये नेक्स्ट जनरेशन की मशीन बना रहे हैं और वो मशीन्स बना भी रहे हैं और हम लोग डिस्प्ले भी कर रहे हैं जनवरी एग्जीबिशन में। तो ये विदाउट जेवी भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्ल्ड की ब्रांड है, जैसे कि आपकी मारुति के अंदर मर्सिडीज का नाम जुड़ा है, तो वो फर्क पड़ेगा, उसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर आपको फर्क पड़ेगा। तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। और जेवी की बात है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आधारित होती है, जिसमें कितना उनको एंट्री लेना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या टेक्नोलॉजी देंगी, तो इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन इससे हमारा एक्सपांशन का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक्सपांशन हो रहा है, देन इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम दोनों चीज साथ में मिलके करें। गॉट इट सर, गॉट इट सर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। आपको सुन के हमेशा अच्छा लगता है, आप इसी तरह अच्छा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Ajay. So that brings us to the end of today's conference call. Would you like to give any closing comments? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और विनय जी बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं और हम चाहेंगे कि आप इतने ही आगे भी बढ़ो और हमारे साथ जो जुड़े शेयर होल्डर्स आपके थ्रू उनको भी मैं एश्योरेंस देता हूं कि ये जर्नी जो है वो मेरे ख्याल से Q2, Q3, Q4 से स्टार्ट हुई है। ये बिजनेस को समझना है। अजय जी ने जैसे बताया कि आपके पास कुछ नया होता है तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैक पावर नहीं, मशीन टूल्स नहीं, कोई भी कैपिटल गुड्स को अगर आप ट्रैक करते हो तो फर्स्ट क्वार्टर पे कभी एग्जिट नहीं और फोर्थ क्वार्टर को देख के कभी एंट्री नहीं। सो ये अच्छा इंटरेक्शन रहता है और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके मुझे भी एक पैशन मिलता है और जो बात मैं बोलता हूँ वो करने के लिए एक होश भी मिलता है, जुस्सा भी मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन मैक पावर के साथ जुड़ने के लिए और हम आपको जो प्रोमिस किया है वो फुलफिल करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. And really nice point you said about Q4 and Q1. So thank you for joining on this call, all the participants, and thank you to the management for their valuable time. This Thank you. brings us to the end of today's conference call. Thank you.